everyone, this is Samad Saxena and I'm back with a new part for Maths Class 6 Patterns in Mathematics Chapter number 1. Today we are going to cover up the page number 3 to the page number 7. और बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि हिंदी में समझाओ तो this time मैं English kinda में समझाऊंगा थोड़ा. So without wasting any time, let's start. Page number 3, visualizing number sequences. So here they are telling us कि हम लोग बहुत सारे सीक्वेंसेस जो हमने टेबल 1 में सीखे थे वी कैन विजुअलाइज देम यूजिंग पिक्चर्स. सो ये मैंने टेबल 2 में नोट डाउन कर लिया, ये है समथिंग लाइक दिस. सो लेट्स स्टार्ट विद द टेबल नंबर 2 ओवर हियर. सो दे आर टेलिंग अस मेनी सीक्वेंसेस but not power of 2 and 3. We are going to study them later. See, all one sequence. Here you are going to get the answer for why are triangular number called triangular numbers. So all one sequence. In this, 1 dot, then 1, then 1, then 1, then 1. Easy. Next is the counting number sequence. 1 dot, then 2, then 3, then 5, then 7, then 9. So these are called the odd numbers. We studied about them earlier too, but here you would think that you would do it like 1, then 1, 2, 3, then 1, 2, 3, 4, 5. Yes, you can, but according to your book, they are visualizing it like this. See, 1 dot, I hope it's visible to you. Then 1 dot is here again, but they are adding 2 dots, right? So 2 behind it. Okay, next 1 dot and the 2, then again 2. This is the same thing happening here. Okay, next is the even number sequence. Now they are working in the table of 2, like firstly 2, then 4, then 6, then so on. So in 2 we had 2 dots, and then in the next one we added 2 dots behind it. Then again 2 dots behind it, then again. Okay, so it's forming the pattern for the even numbers. Next is triangular numbers. Now you would get the answer for why they are called triangular numbers. See, when they are placed in a definite pattern, they form a triangle. That is why they are known as triangular numbers. See, 1 is here. We studied the pattern earlier too. It's like 1, 3, 6, 10, 15, 21 and 28. When we had this 1 dot, then it was like this. Then we added 2 dots under it. It formed a triangle. See, this is a triangle. Then next, this is our triangle, but we added 3 more dots under it. This is also forming a triangle. Next, 1, 2, 3, this is our figure. Then 1, 2, 3, 4 more dots. This is also a triangle. So this is why they are known as the triangular numbers. Next is the square numbers. Squares. So in the squares, they form a definite. They form a square when placed in a definite pattern. See here, 1 dot, then 4 dots, then 9 dots. So they are forming squares. Here, see here, it's written 1, 4, 9, 16, 25 and so on. So here it's forming a here it's forming a square here, right? By making the grids. See, how do we count them? There's a trick. यहाँ पर हम क्या करते है कि हमारे पास में मान लो कोई रेक्टेंगल और स्क्वायर एनीथिंग वी हैव, और फिर ये मैंने डॉट्स लगा ली. इस फिगर में कितनी डॉट्स हैं इनको काउंट करना है, तो फिर ये वाली साइड की काउंट करो, ये वाली साइड की काउंट करो. बेसिकली L into B. Okay, this will get you the number of dots in it, like 4 into 3, which is 12. So here too, you will wait. Okay. Now here too you would do the same. Here there are, suppose these are 5, then these are also 5. 5 5s are 25. So these are total 25 dots. Next is cubes. In cubes,
They are called cubes because they form a perfect cube when placed in a definite pattern. And here too you can see, don't judge my drawing, but see, there is one cube, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cubes, so, and then 27, then so on. So what happens here is the same. You can also count these by multiplying the length into breadth and height. See, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. And if you know it's a cube, you can count 1, 2, 3, 4 and then just multiply it by itself thrice. And if you know that it's a cuboid, then you have to count all of it. Next is the question. Solve the figure it out. So take out your book, page number 5, Ganit Prakash. Figure it out. Page question number 1. Copy the pictorial representations of the number sequences in the table 2, this one, in your notebook and draw the next picture for each sequence. So firstly you have to draw this entire table and after that you have to draw the next one. Okay, we can see here. एक, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 are here and 6. तो 6 हो गया. और यहाँ पर हमने सीखा था कि ऐसे नहीं लगानी, 1, 2, 3 ऐसे लगा ली या 1, 2 ऐसे लगा ली, ऐसे डॉट्स को नहीं लगाना है. हमें इनको ऐसे स्टैक करना है कि पहले एक डॉट थी, फिर उसके पीछे 2 लगा दी, फिर उसके पीछे 2 लगा दी, ऐसे ही करना है हमें. और ये यहाँ पर अगर हम रेक्टेंगल को देखें जो बन रहा है यहाँ पर, ये दिस रेक्टेंगल, देन ये है 4/2 का रेक्टेंगल. तो नेक्स्ट में हमें बनाना होगा 5/2 का रेक्टेंगल. तो पहले हम 5/2 का रेक्टेंगल बना लेते हैं. 5/2 का रेक्टेंगल हो गया. अब we have to place one dot next to it. Okay, so this is how we can do it. A little bit like, okay. Next is the even number sequence. Yes, this is it. It's still 1, 2, 3, 4, 5. So it will go like 1, 2, 3, 4, 5, 5/5 rectangle. Then next would be the 6/2 rectangle. This is 5/2, so this would be 6/2. 3, 4, 5, 6. 6/2. This is how we will do the even number. Then triangular numbers, we understood this. हमने समझा था ये पहले भी. तो यहाँ पर हमने एक के नीचे एक डॉट लगानी शुरू करी थी, तो इसके नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे डॉट्स लग जाएंगे. ऐसे ही हम यहाँ पर भी बना लेंगे फिगर. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो यहाँ पर ये डॉट मान लेना, इसको यहाँ पर लगे जैसे. So this is how we can do the triangular number sequence. Next is the square sequence, which would be done like 1, 2, 3, 4, 5. This is 5/5 square. Then this would be 6/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the 6/6 square. Then we have to complete this entire square. See, 1, 2, 3, 4. I hope you can see this. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. So this is how we have to do it. We have to firstly see which number square it is. Then we have to create a square. So this is the 6/6 square. Next is the cube sequence. 1, 8 and 27 and so on. This is it. So here we have a very long sequence. You would think that it's very hard. Like if you see here, it's bad, but if you make it on the notebook with the help of scale, you can make it easily. But for now, you can understand this.
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Okay, so 5 by 5 by 5 grid, 1 2 3 4 5. Yes, so here we have to increase 1 1 in each. I don't have enough space here, so I'm erasing this line and making it in this figure only. So something like, I have to make it separately only. So for now, where do I, okay, I'm making a small one over here. See, 1 2 3 4 5, then here it would be 6 by 6. Okay, this is it. Now if you are taking 6 by 6, there would be 5 lines in it. 1 2 3 4 5. तो ये कुछ ऐसे बनेगा और फिर हमें इसको यहाँ से डायगोनली एक्सटेंड करना होगा कुछ इस तरह से. नोटबुक पे और अच्छा बनेगा, अभी जज मत करना मैं कैसा बना रहा हूँ कैसा नहीं, वरना अभी के लिए बस समझ लो रफ सा है ये. तो 5 का है ना, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया. अब यहाँ भी हमें 6 लाइन्स बनानी है, वो 5 1 2, प्लीज इग्नोर द नॉइज, 3 4 5 lines. We have made 5 lines. तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो 6 by 6 का हमारा क्यूब रेडी है. अब हमें इन्हीं लाइंस को डायगोनली और एक्सटेंड करना है कुछ ऐसे. सो दिस इज हाउ इट्स डन. ठीक है, कुछ ऐसे. ओके, मैं इसको यहाँ से 5 लाइन्स बनाऊंगा. इसको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये लाइन ऐसे एक्सटेंड. ठीक है, ज़्यादा इसको जज मत करना देखकर कि खराब बनाया अच्छा बनाया, वरना अभी के लिए इतना समझ लो कि यू हैव टू सी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ओके, कुछ ऐसे बनेगा ये फिगर. नाउ फिगर इट आउट. मैंने क्वेश्चन नंबर 1, अब मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे हैं. ये जो ज़्यादा लिखने वाले हैं वही करे हैं मैंने यहाँ पर. सो लेट्स स्टार्ट. कॉपी द पिक्टोरियल. वी हैव डन दिस. Why are 1 3 6 10 15 called triangular numbers? So they are called triangular numbers because they form a perfect triangle when placed in a definite pattern. Why are 1 4 9 16 and 25 known as the square numbers? They are known as square numbers because they form a definite square when placed in a definite pattern. A perfect square when placed in a definite pattern. Why are 1 8 27 64 125 called cubes? They are called cubes because they form a perfect cube when placed in a definite pattern. Okay, clear? So here we have the question number 4. So they are asking us which pattern of sequence is this? So definitely hexagonal number sequence because 1 1 2 3 4 5 6 7. So like if you see the boundary, then you will see that it's forming a hexagon. Okay, we will understand how to draw it later if they are asking in the question. Yes, we have to draw the next one in this. So see, firstly we have, where do I draw? Like here, look at this. So see, we have firstly we have 1 dot for this. Okay, next we add 2 dots on the side and then extend it from the top and bottom, like एक इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच में,
नीचे, एक इन दोनों के बीच में नीचे, ऐसे. सो नेक्स्ट वी हैव टू एक्सटेंड द डॉट्स अगेन, कुछ ऐसे, और फिर इन दोनों के बीच में, 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 फिर एक बार और ऊपर से एक्सटेंड कर देंगे. ठीक है, ऊपर नीचे से एक्सटेंड कर दिया. अब एक एक और एक्सटेंड कर देंगे यहाँ से, एक इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच में, एक आएगा यहाँ पर कहीं इन दोनों के बीच में, एक आएगा इन दोनों के बीच में, एक 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 इन दोनों के बीच में, और हमारे पास में 3x3 का बन रहा है अभी, बट इसको अभी हमें और एक्सटेंड करना है क्योंकि ये 4 का बनाना है हमें. ठीक है, समथिंग लाइक दिस वी विल एक्सटेंड इट फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम. तो ऐसे. ठीक है, ये बनेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये है हमारा फिगर. अब हमें इसको और बढ़ाना है. अब इसके साइड में लगा दिया, इसके साइड में लगा दिया, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में, 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 एक सेकेंड, हाँ, इन दोनों के बीच में. अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, और फिर इन दोनों के, एक सेकेंड, ये यहाँ कहीं पर आएगा, हाँ, फिर ये इन दोनों के बीच में. अब ये पूरा एक्सटेंड कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर ये भी वी हैव टू एक्सटेंड. ये ऐसे बनेगा कुछ हमारा फिगर आफ्टर 37. अब अगर आप चाहो तो इसको काउंट कर लेना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61. तो ये है 61 डॉट्स. नाउ एक और तरीका है इनको काउंट करने का. ये जो मिडिल वाली लाइन है, सबसे बड़ी वाली, ये वाली लाइन को छोड़ के इसके चाहे ऊपर का हाफ ले लो, इसके नीचे का हाफ ले लो. इफ वी टेक द अपर हाफ, तो इन डॉट्स को काउंट करके इंटू 2 कर दो, फिर इनको काउंट करके उसमें ऐड कर दो. ऐसे इजीली निकल आएगा आंसर हमारा. अब हमसे पूछ रहे हैं पिक्टोरियल वेज टू रिप्रेजेंट क्यूब पावर्स ऑफ 2 एंड पावर्स ऑफ 3, क्योंकि यहाँ पर इस टेबल में बताया नहीं है, तो हम देख लेते हैं. यहाँ पर पावर्स ऑफ 2 का सीक्वेंस हमसे पूछ रहे हैं, तो फिर हम कुछ ऐसे बना सकते हैं. देखो, वी हैव टू मेक 1 डॉट, फिर उसी का जैसा, मतलब एक फिगर हमने पहले लिया, फिर उसका डबल कर दिया और उन दोनों को ज्वाइन कर दिया, फिर एक और उसके जैसे फिगर लिया और उनको डबल करके ज्वाइन कर दिया. ठीक है, तो ये है एक, फिर 2 डॉट्स और इनको ज्वाइन कर दिया. अब देखो, या तो मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइंस लिए हैं, पर आपको क्या करना है, आपको पेंसिल को बहुत लाइट चला देना है इस पर विजिबल होना चाहिए. फिर इसके जैसा एक और फिगर ले लिया और इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, फिर इसको स्क्वायर को लिया और अब इस स्क्वायर के पूरे सेंटर में एक डॉट रखी. फिर ये जो डिस्टेंस थी इस डॉटेड लाइन से यहाँ तक, वही इक्वल डिस्टेंस ऊपर रखनी है. फिर यहाँ पर एक डॉट मार्क करके ऐसे पूरा फिगर कंप्लीट करना है. फिर सेम यहाँ पर भी होगा, ये जो डिस्टेंस है ये इसके इक्वल होनी चाहिए. फिर इनको ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दिया. कुछ ऐसे बनाना है, एक स्क्वायर, इसके बीच में ऐसे, फिर ये जॉइन, ये जॉइन, ये जॉइन और ये जॉइन. ठीक है, ऐसे बनाना है हमें कुछ. बट यहाँ पर ये लाइंस थोड़ी हल्की होनी चाहिए और डॉट्स दिखनी चाहिए. और ये डॉट्स, ये शायद कैमरा में विजिबल ना हो, अभी मैं ये यहाँ पर बना देता हूँ. यहाँ पर मैंने क्या करा है,
या मैं डॉट्स को या ऐसे ही देख लो, यहाँ पर ये डॉट पहली वाली एक ही थी, पावर्स ऑफ 3 का बुक में दे नहीं रखा है कहीं भी, ये पावर्स ऑफ 3 का है, पावर्स ऑफ 3, ठीक है। सो यहाँ पर वो डॉट्स दिख नहीं रही होंगी शायद, तो मैं दोबारा बना रहा हूँ एक बार। एक डॉट यहाँ पर है, फिर मैंने क्या करा, इस डॉट को ट्रिपल कर दिया और फिर से लाइट लाइन से ज्वाइन करना आप लोग, वरना समझ नहीं आएगा, वरना मैंने अभी के लिए डॉटेड लाइन ले ली है, ठीक है, इनको ज्वाइन कर दिया। फिर नेक्स्ट में हमने क्या करा है, ये वाला जो है, ये वाला जो फिगर है हमारा, वी हैव ट्रिपल कर दिया है इसको भी दोबारा से, पर ये वाली जो डॉट है इसके नीचे एक डॉट लगाई, फिर इसको ऐसे कर दिया और फिर डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया, फिर इसके नीचे एक डॉट लगाई, यहाँ पर लगाई और इस वाली के साइड में लगा दी, फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब नंबर ऑफ डॉट्स को काउंट करोगे ना तो पावर्स ऑफ 3 का ही सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने नहीं करा है, वरना आप लोग इस वाले फिगर को दोबारा से बनाकर इसके नीचे 2 और ऐसे फिगर बनाओ और फिर बन जाएगा इसका नेक्स्ट सीक्वेंस। और नोटबुक में मतलब एग्जाम में अगर कोई सीक्वेंस पूछा जाए तो कम से कम 5 तक लिखना, क्योंकि हर एक सीक्वेंस में से 5 तक ड्रॉ भी करा है और 5 तक लिखा भी है टेबल 1 में। अब हम सीखेंगे रिलेशंस बिटवीन द नंबर सीक्वेंसेस, जो मैं इतने टाइम से बोल रहा था पार्ट 1 में, रिलेशन 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 रिलेशन, वो अब हम यहाँ पर सीखेंगे, वो क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने बताया था रिलेशन, बहुत सारे यहाँ पर बताए थे रिलेशंस, कि ऑल वंस और काउंटिंग का रिलेशन बताया था मैंने, और क्यूब्स और हेक्सागोनल का बताया था मैंने उस पार्ट में। अब समझ में आ गया होगा हेक्सागोनल नंबर्स ये होते हैं, क्यूब्स और हेक्सागोनल का रिलेशन बताया था। ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट रिलेशंस होते हैं और यहाँ पर अब वही रिलेशंस को समझेंगे हम। रिलेशंस में क्या है, मतलब 2 पैटर्न एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो यहाँ पर वी कैन सी दिस इज एडिंग अप ऑड नंबर्स, द सम फॉर ऑड एंड स्क्वायर नंबर्स, no not the sum, but we are adding consecutive odd numbers and then we are getting the square numbers. See, we have 1, then it will be 1, then we have 1 and 3, 2 consecutive odds, then we have 4, then we have 1, 3 and 5, 9, then plus 7, 16, plus 9, 25. So we are getting the odd number sequence over here. Okay, clear? Now let's understand how this happens. A picture is enough to explain why this happens. So see, this is 1 odd, then these are 3 odd, then 1, 2, 3, 4, 5 odd number. So when we are seeing this, 1 dot is a square. Next 4, this is forming a square. Then again it's forming a square after one more odd number. So it will form squares again and again. Let me just fix it because we have to do one more question related to this. So until then, so you can see that how it is happening. See, the odd numbers happen when we skip one number, and like firstly we have like we have 1, then skip 2, 3, skip 4, 5, like this. So this is how it happens. Next they are asking us some questions. Why does this happen? We told this is the answer. This is enough to explain why this happens. And do you think it will happen forever? Yes, patterns are always endless. They'll happen forever. Okay, next. Yes. So they are telling us that, asking us actually,
By drawing a similar picture, can you say what is the sum of the first 10 odd numbers? So here we have to tell the sum for the first 10 odd numbers. So in this figure we have to extend this and then I'll tell you. See, 1, 2, 3, 4, 5. We have to make 5 more above this. Then like this. 6, 7. Now in this question we have to draw it, but for the next one I have a trick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then 10. You can draw it in your notebook, but I don't have enough space here. So you can draw it like continuing this pattern. Next, you have to count the number of dots in this. If you would count the number of dots, it would be 100. Now you would think, how did I tell? See, if we are taking 1, then it's equal to 1. Then we are taking 1 plus 3, it's 4. Then 1 plus 3 plus 5, yeah, 9. फिर आया 1 plus 3 plus 5 plus 7, तो आया 16. तो ऐसे तो ये स्क्वायर नंबर्स आ रहे हैं, पर इसमें एक और चीज़ नोटिस करने वाली है. स्क्वायर्स मैंने पिछली वीडियो में समझाए थे, वो नहीं देखी है तो पहले वो देख कर आओ. ये जो नंबर है, ये नंबर को काउंट करो कितने नंबर्स आ रहे हैं. तो ये नंबर 1 है, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 का स्क्वायर. नेक्स्ट, ये हैं 2 नंबर्स, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 का स्क्वायर. जितने भी हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेंगे उतने नंबर का स्क्वायर आएगा आंसर हमारा. सो अगर हम 10 का लेंगे तो फिर आएगा 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर आएगा 10 इंटू 10 जैसे लास्ट वीडियो में देखा था, और आ जाएगा हमारा आंसर 100. ठीक है, ये है एक पैटर्न जो इसमें फॉलो हो रहा है. अब ऐसे ही हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नाउ बाय इमेजिनिंग अ सिमिलर पिक्चर और बाय ड्राइंग इट पार्शियली. नाउ हमें इन्होंने छूट दी है, हमें इसको पार्शियली ही ड्रॉ करना है. तो पार्शियली का मतलब थोड़ा सा हिस्सा इसका ड्रॉ करना है. तो आप लोग 10 तक ड्रॉ कर देना या 7 या 8 तक ड्रॉ कर देना, वो उतना चल जाएगा. As needed, can you see what is the sum of the first 100 odd numbers? तो अब first 100 odd numbers का sum होगा 100 into 100, क्योंकि वो 100 numbers होंगे. 100 odd numbers 100 numbers ही तो होंगे, तो उसको 100 का स्क्वायर लेंगे. 100 का स्क्वायर है ना, तो आंसर आएगा 100 into 100 मतलब 10,000. So sum of first 100 odd consecutive odd numbers is 10,000. Clear? अब नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक इस पार्ट का, अप एंड डाउन नंबर्स और स्क्वायर्स का रिलेशन. सी, अप एंड डाउन में क्या हो रहा है, इसका पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अभी के लिए व्हाट इज हैपनिंग इन द अप एंड डाउन नंबर सीक्वेंसेस. सी, पहले था 1, फिर 1/2, फिर 1 घट गया 1, फिर 1, 1/2, 1/3, फिर कम हुआ 2, फिर कम हुआ 1, मतलब 1 का 1 ही हो गया. 1 फिर बड़ा, फिर कम हुआ 4, 1 फिर बड़ा 2, बड़ा 3, फिर कम हुआ 2, फिर कम हुआ 1, 9, और 1 फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 3 + 2 + 1 आ गया 16. 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, ऐसे पहले ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं. अब इसके बारे में एक और छोटी सी चीज़ मुझे बतानी है जो कि नेक्स्ट वीडियो में बहुत काम आने वाली है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है जो न्यूली इंट्रोड्यूस होता है उस नंबर का, इसमें तो 1 ही है, तो इसका स्क्वायर होता है आंसर. अब इसमें नेक्स्ट
देखो सबसे बड़ा नंबर है 2, तो इसका स्क्वायर है आंसर जो रिजल्ट आएगा। तो जो न्यू नंबर इंट्रोड्यूस होता है जो कि बिगेस्ट नंबर बन जाता है, उसका स्क्वायर आता है आंसर उस पूरे अप एंड डाउन सीरीज का। अब देखो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है, 1, 4, 9, 16, 25 स्क्वायर नंबर्स, ये है स्क्वायर नंबर्स। तो यही होता है रिलेशन, यही मैं बोल रहा था पार्ट 1 में। ठीक है, सो लेट्स एंड दिस वीडियो नाउ।